So, welcome to the students. My next lecture today, that is on the orifice meter. Here we will discuss its principle, on which principle the orifice meter works, its working, construction, and the calculation of the derivation to find the discharge, right? So this is my lecture today, and let us discuss the orifice meter. So सबसे पहले orifice meter को हम डिस्कस करते हैं. What is orifice meter? Orifice meter, right? So orifice meter, you can say this is a very small device to calculate the. This is a very small device to calculate the discharge of the fluid which is flowing in the pipe. You understand this? Orifice meter क्या है? Orifice meter is a very small device which is used, जिसको हम यूज करते हैं किस काम के लिए? To find the discharge in the pipe. एक पाइप है, उसके बीच में कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है. Suppose the liquid water is flowing in the pipe here, and we want to find the discharge of the water through the pipe. So how we can calculate? We just put the orifice meter there, and by putting the orifice meter, we calculate the discharge of this. So you can say this is the simple function of the orifice meter. What is the function? To calculate the discharge, to find the discharge through the pipe, right? This is the orifice meter. तो ओरिफाइस मीटर अगर डेफिनेशन लिखने की बात करते हैं तो लिख लेते हैं इट इज यूज्ड so you can say orifice meter is a small device is used for measuring the discharge through the pipe. तो अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना हो, डिस्चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? पाइप में. सो पाइप में अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना हो तो वी विल यूज द ओरिफाइस मीटर. यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, प्रिंसिपल की बात करूं, फंक्शन में प्रिंसिपल की बात करता हूं मैं, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? ऑन विच प्रिंसिपल दिस ओरिफाइस मीटर वर्क्स? सो यू कैन से ओरिफाइस मीटर आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल as we are using the principle for the Venturi meter. जो Venturi meter का प्रिंसिपल था, सेम प्रिंसिपल के ऊपर ओरिफाइस मीटर भी वर्क करता है. और Venturi meter में क्या प्रिंसिपल था? कि by reducing the passes of the flow, क्या करेंगे? By reducing the passes of the flow, the pressure difference between the two sections is created or developed, and by measuring the pressure difference we will measure the discharge in the pipe. You understand this? तो same principle क्या था कि by reducing the, here क्या था? by reducing the passes of flow of liquid which is flowing through the pipe, So this is your principle. By reducing the passes of flow of liquid which is flowing through the pipe, तो जब हम इसको पैसेज को क्या करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे
तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस between the two sections will develop, and by measuring the pressure difference by the U-tube differential manometer, the discharge through the pipe is measured. तो ये इसका प्रिंसिपल था. व्हाट इज द प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल था कि जो फ्लूइड जो है आपकी पाइप से फ्लो कर रहा है. सो हाउ, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस ओरिफाइस मीटर? इसका प्रिंसिपल क्या है कि we will adjust the orifice meter in such a way that it will reduce the passage of flow. ये जो फ्लो का पैसेज होगा इसको क्या करेगा, इसका एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा. वो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका रिड्यूस होगा, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है पाइप का ज्यादा है, जहां पे हमने ओरिफाइस मीटर को फिक्स किया है, जहां पे अटैच किया है जहां पे, और ओरिफाइस मीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, कम है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द ओरिफाइस मीटर. जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो क्या होगा, इसमें डिफरेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा when we will apply this, when we will, you can say, put the orifice meter in the flow. You understand this? तो जहां पे क्या होगा, जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्रिएट होगा. जहां पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा. जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई है, प्रेशर आपका क्या होगा, जहां पे ज्यादा होगा. जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम है तो आपका क्या होगा, प्रेशर आपका कम होगा. तो यू कैन सी, इफ यू विल टेक द टू सेक्शंस देयर, यू विल सी दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस. और ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा that is measured by this U-tube differential manometer which I have put here on the pipe. तो U-tube differential manometer का क्या फंक्शन है, जहां से हम प्रेशर डिफरेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, जहां से हमें हेड कैलकुलेट होगा. प्रेशर डिफरेंस हम मेजर करेंगे, हेड कैलकुलेट होगा, और by using the formula we can measure the discharge through the pipe. You understand this? अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल क्या था. इसको हम डिटेल में, इसका फंक्शन जो है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्योंकि हम ओरिफाइस मीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफाइस मीटर. सो ओरिफाइस मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है. अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं ओरिफाइस मीटर का, तो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिफाइस मीटर क्या है ये. सो ओरिफाइस मीटर, व्हाट इज दिस ओरिफाइस मीटर? दिस इज ए सर्कुलर प्लेट. This is a circular plate with the hole, and the diameter of the hole, or you can say orifice, that is very less as compared to the diameter of the pipe. You understand this? There is a circular plate which is having the hole, and the axis of the hole is concentric with the axis of the pipe. You understand this? ये आपका हो गया, ये क्या है, सर्कुलर प्लेट होगी,
और सर्कुलर प्लेट का बीच में क्या होगा, जहां पे एक होल कटा होगा, जो होल का जो डायामीटर है वो आपके इस डायामीटर ऑफ पाइप से क्या होगा, कम होगा। कितना होगा? अगर मैं कहता हूं कि डी नॉट इज द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस, डी नॉट किसका डायमीटर है? ओरिफाइस का। तो ये कितना होना चाहिए? ये 0.5 इंटू D1, 0.5 इंटू D1, दिस इज द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस। अगर D नॉट इज द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस है, सो ये आपका हाफ टू D1 होना चाहिए। बट एक्चुअली इसकी जो वैल्यूज है, दैट इज, जो इसकी वैल्यूज का रेंज है, दैट इज गिवन एज फ्रॉम 0.4 से 0.7 और 0.8। बट यूजुअली जनरली वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ओरिफाइस। कितना? ओरिफाइस का डायमीटर हम कितना लेते हैं? 0.5 इंटू 0.5 इंटू D1। तो एक्चुअली जहां पे मैंने कहा आपको ये वैल्यू लेंगे, अदरवाइज जो इसका रेंज है वो 0.4 से 0.8 इंटू D1 दिया है, लेकिन हम इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं और जो मोस्टली हम वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 0.5 D1। ये हो गया आपका डायमीटर आपका ओरिफाइस कितना होना चाहिए, ये जो होल है वो ये कितना होना चाहिए। अगर मैं प्लेट की बात करूं, प्लेट की जो सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का अगर मैं, सर्कुलर प्लेट जो आपकी है, सर्कुलर प्लेट की अगर मैं थिकनेस की बात करूं, T, अगर T इज द थिकनेस ऑफ द सर्कुलर प्लेट, राइट, तो इसका जो हम लेते हैं ये ऑलमोस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट 0.05 इंटू D1, राइट। तो ये थिकनेस अगर सर्कुलर प्लेट की है तो 0.05 इंटू D1। तो ये आपका हो गया कि ओरिफाइस मीटर क्या है। ओरिफाइस मीटर इज ए सर्कुलर प्लेट हैविंग अ होल in the center of that, and the axis of the hole and the axis of the pipe, that is concentric to each other. You understand this? So diameter of the hole, that is 0.5 into D1। अगर numericals में आपको ऐसा आता है, suppose और आपको diameter of the orifice is not given here, तो diameter अगर आपके पास पाइप का diameter है तो you can calculate the diameter of the orifice. This is equal to D naught into 0.5 into D1। और सर्कुलर प्लेट का जो अमूमन जो थिकनेस हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.05 इंटू D1, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। इसका कंस्ट्रक्शन क्या था ओरिफाइस मीटर का, राइट। अब आ जाइए हम यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर? So U-tube differential manometer। So सबसे पहले ये कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द U-tube differential manometer का क्या फंक्शन होगा? फंक्शन क्या है इसका? To find the pressure difference between the two sections। जहां पे देखिए, अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये आपका मैंने U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इसका एक लेग जो है दैट इज एट द सेक्शन 2 एंड द वन लेग इज एट द सेक्शन 1 राइट। अब देखिए ये जो सेक्शन 1 है ये आपका ओरिफाइस, दिस इज योर ओरिफाइस प्लेट यहां पे लगी हुई है, राइट। ओरिफाइस मीटर और ओरिफाइस प्लेट, इसका वन सेक्शन जो हम लेते हैं, अगर इसका अपस्ट्रीम की बात करूं कि बिकॉज द स्टीम इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां से जहां तक ये आपका स्टीम जो है फ्लूइड इस तरीके से आपका पाइप में फ्लो कर रहा है, राइट। सो द फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो ये आपका क्या होगा? फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो ये आपका अपस्ट्रीम है। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिफाइस से जो एक लिम्ब हम जो U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो एक लिम्ब होगा, जहां से ओरिफाइस से हम कितनी दूरी के ऊपर इसको अटैच करेंगे पाइप के साथ? 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ D1,
ये जो लिम्ब आपका लेफ्ट लिम्ब है दैट इज एट सेक्शन 1-1 के ऊपर। सो एट लिख सकते हैं एट सेक्शन 1-1 one limb is attached, one limb of U-tube differential manometer is attached, right? एट ए डिस्टेंस कितना होगा जहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 2 मीटर 1.5 to 2 times of diameter D1, that is diameter of the pipe upstream। ये लिख लीजिए आप अपस्ट्रीम, राइट? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का क्या मतलब है? ओरिफाइस से इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर अपस्ट्रीम, ठीक है? फ्रॉम द ओरिफाइस कर लीजिए आप, फ्रॉम द ओरिफाइस, राइट? और ये जो दूसरा लिम्ब है, दूसरा लिम्ब जो है इसको हम अटैच करेंगे जहां पे हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट होगा। मींस एट सेक्शन 2-2 सेकंड लिम्ब दैट इज अटैच्ड एट सेक्शन 2-2 वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट इज मिनिमम, यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से दिस इज ऑलमोस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 into D0 डाउन स्ट्रीम। इससे डाउन स्ट्रीम की तरफ हम इसको लगाएंगे तो अगर अब मैं जहां पे लिख लूं सेकंड लिम्ब downstream from the orifice plate, the orifice meter कितना at distance, कितना डिस्टेंस लेंगे हम डाउनस्ट्रीम टाइप ओरिफाइस मीटर से? आप लिख सकते हैं 0.5 into D0, राइट? D0 where D0 is the diameter of the orifice। तो ये आपका हो गया। U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम किस तरीके से अटैच करेंगे? वन लिम्ब इज अटैच्ड एट सेक्शन 1-1, राइट? एंड द सेकंड लिम्ब दैट इज अटैच्ड टू द सेक्शन 2-2। इनिशियली जो आपका इसका फ्लूइड का, जो इसके बीच में जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका रीडिंग्स जो है, जो इसका लेवल था वो क्या है? सेम होगा। जब हमने इसको अभी U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर को इसके साथ अटैच नहीं किया है, इनिशियली इसका लेवल क्या होगा? सेम होगा। एंड व्हेन वी विल अटैच टू दिस पाइप वेयर द फ्लूइड इज, वेयर द वाटर इज फ्लोइंग, यू कैन से वेयर द लिक्विड इज फ्लोइंग, सो व्हाट हैपेंस देयर एट दिस सेक्शन, यू कैन से द प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मोर। जहां पे क्या होगा? फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका जहां पे ज्यादा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका ज्यादा है तो वेलोसिटी आपकी क्या है? जहां पे कम है, वेलोसिटी कम है और प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा? अगर ये दोनों का लिम्ब आप कह सकते हैं, मीन्स आपका ये पहले लेवल दोनों का जहां पे था, दिस इज द फर्स्ट लेवल, यू कैन से दिस इज द लेवल, इनिशियल लेवल इज दिस। सपोज करो इनिशियल लेवल था यहां पे, नॉट हियर, सपोज आपका इनिशियल लेवल जहां पे था, ठीक है? तो इसका भी इनिशियल लेवल जहां पे था, राइट? जहां पे था। अब क्या हुआ? इसका लेवल जहां से इतना डिक्रीज हुआ, इतना लेवल इसका डिक्रीज हुआ, जहां पे इसका लेवल जहां से जहां तक डिक्रीज हुआ, और जहां से लेवल जहां तक इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यू अंडरस्टैंड दिस? ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो आप कह सकते हैं जहां से लेके जहां तक जो आपकी इसकी डिफरेंस ऑफ द रीडिंग होगी, दिस इज इक्वल टू एक्स, आर इज इक्वल टू एच। तो जहां से हम क्या करेंगे? इसका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर से हमें क्या मिलेगी? रीडिंग मिलेगी प्रेशर डिफरेंस की। और जहां से हम क्या करेंगे? इसका हेड जो था
वो कैलकुलेट करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? ड्यू टू डिफरेंशियल मैनोमीटर, दैट इज क्लियर टू यू? इसका क्या फंक्शन है, इसलिए लगाया है, कहाँ पे लगाना चाहिए, एक लिम्ब इसकी कहाँ पे होनी चाहिए, दूसरी लिम्ब इसकी कहाँ पे होनी चाहिए, और इसका फंक्शन क्या है, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शंस। यू अंडरस्टैंड? तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग को भी हम बताएंगे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफाइस मीटर क्या है, ओरिफाइस मीटर का डेफिनेशन क्या है, इसलिए ये यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमने जहां पे डिस्कस कर ली हैं। नाउ आई विल कम टू द वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। राइट? तो अब वर्किंग की बात करते हैं। देखिए इसको, इसका कंसेप्ट समझिए। So just see working. Right? वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट, मैं करता हूं, लेट A1, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप or at section 1 1, right? A1 cross sectional area of the pipe A0, अगर मैं A0 की बात करूं, A0, this is the cross sectional area of the cross sectional area of the orifice A0, this is the cross sectional area of the orifice D1 is the diameter of the pipe, therefore A1 किसके बराबर होगा, pi/4 into D1 square, right? और D0 अगर मैं कहूँ diameter of the orifice, so therefore A0 pi/4 into D0 square. You understand this? अब देखिए इसकी वर्किंग की बात करते हैं। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, जस्ट अंडरस्टैंड। फ्लूइड जो है, ये आपकी पाइप है, फ्लूइड जो है पाइप से फ्लो कर रहा है, राइट? सो इफ आई विल कंसिडर वन स्ट्रीम लाइन, ये आप कह सकते हैं दिस इज द सेंट्रल स्ट्रीम लाइन, ये जो आपकी है दिस इज द सेंट्रल स्ट्रीम लाइन, लाइक दिस। So if I will consider the one streamline of the fluid, तो क्या होगा, अगर मैं जहां पे जो मैं ड्रा किया there is only one streamline, तो ये फ्लूइड जो है ये इस तरीके से पास होता जाएगा, इस तरीके से पास होगा, then it will start converging and converging. Here is the orifice plate which I have placed here in the path of the pipe, right? तो ये जो आपका डायमीटर है इसका पाइप का वो क्या है, ज्यादा है। ये जो ओरिफाइस प्लेट में जो आपका ओरिफाइस होगा उसका डायमीटर क्या है, कम है, स्मॉलर डायमीटर। तो इसी तरीके से जहां से अगर मैं स्ट्रीमलाइन की बात करूं तो दैट विल गो लाइक दिस,
it will converging and converging like this. You understand this? ये क्या होगा, कन्वर्ज होती जाएगी. इसी तरीके से जो आपकी सेकंड स्ट्रीमलाइन है, that will also go like this, second streamline. So you can say that the fluid, the streamlines of the fluid which are flowing here, that is converging right from the section 1-1 or right from the pipe. ये कन्वर्ज होती जाएंगी और ये जो आपका जेट है, there is a formation of the jet. ये आपका कन्वर्जिंग, इसी तरीके से जो जेट है आपका ये कन्वर्ज होता जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? देयर इज अ फॉर्मेशन. अगर मैं जहां की बात करूं तो जहां पे देखिए आप, पहले आप इसको ले लेते हैं, एंड दैट इज कन्वर्जिंग हियर. इफ आई विल टेक दिस स्ट्रीमलाइन, दैट इज आल्सो कन्वर्जिंग. द जेट ऑफ द फ्लूइड, द जेट ऑफ द लिक्विड, दैट इज कन्वर्जिंग लाइक दिस. Right? The reason is because the diameter of the orifice, this is very small as compared to the diameter of the pipe. So the fluid lines, that is converging like this. You understand this? अब क्या होगा, जब ये फ्लूइड लाइन कन्वर्ज होंगी, आप देखते जाइएगा, जहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर सेक्शन 1-1 की बात करूं तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पाइप का, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम है. अब जिस तरीके से फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होता जाएगा बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो रिड्यूस होता जाएगा उससे क्या होगा, आपका वेलोसिटी इसकी फ्लूइड की इंक्रीज होती जाएगी. और वेलोसिटी जब फ्लूइड की इंक्रीज होगी तो इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड व्हेन इट विल पास थ्रू द ओरिफाइस. अब मुझे बताइए, जो फ्लूइड का डायामीटर होगा मिनिमम, क्या ये ओरिफाइस के ऊपर होगा? टेल मी वेदर इट इज ऑन द ओरिफाइस. इसका जब ये ओरिफाइस से ये पास करेगा, सो द डायामीटर ऑफ द ओरिफाइस, यू कैन से दिस इज द डायामीटर ऑफ द जेट. मिनिमम डायामीटर ऑफ द ओरिफाइस, यू कैन से दैट इज द मिनिमम डायामीटर ऑफ द जेट. नो, इट इज नॉट द डायामीटर ऑफ द जेट. मिनिमम जहां पे नहीं होगा, रीजन इज बिकॉज द फ्लूइड इज फ्लोइंग विथ सम इनर्शिया. जब क्या है, जहां पे ड्यू टू द इनर्शिया क्या होगा कि फ्लूइड जो है ये थोड़ा सा फर्दर और कन्वर्ज होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? इट विल कन्वर्ज फर्दर एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिफाइस ड्यू टू इनर्शिया. तो जो फ्लूइड है ये जहां के से पास करने के बाद से स्टिल कन्वर्ज होगा और फिर उसके बाद देन इट विल स्टार्ट डाइवर्जिंग लाइक दिस. यू अंडरस्टैंड दिस? सो द मिनिमम एरिया इन दिस केस हियर, द मिनिमम एरिया that is not at minimum area of the jet, you can say that is not at the orifice, what it is at some distance of the orifice. Reason is because due to the inertia the fluid is moving with a higher velocity. जैसे जैसे इसका एरिया जो है रिड्यूस होता जाएगा, फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. और इस पॉइंट के ऊपर बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी लेस, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगी, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगी. सो ड्यू टू द इनर्शिया आपका जो मिनिमम एरिया ऑफ द जेट होगा दैट इज नॉट एट द पॉइंट ऑफ द ओरिफाइस बट इट इज एट सम डिस्टेंस ऑफ द ओरिफाइस. यू अंडरस्टैंड दिस? तो जहां पे ये जो आपका मैंने ब्लैक से शो किया है, यू कैन से जहां पे जो आपका फ्लूइड है वो जहां पे क्या होगा, इसका एरिया मिनिमम होगा. और उसके बाद फिर अगेन देन द फ्लूइड विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. अब आ जाइए, ये हो गया इसका वर्किंग. अब आ जाइए इसके हम प्रेशर के हिसाब से देखते हैं, वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं. देखिए जहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो क्या था, A1 है, ज्यादा है, मैक्सिमम है. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है ओरिफाइस का है वो क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस. तो जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे जैसे एरिया इस, अगर 1 पॉइंट की बात करें, 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक की बात करते हैं हम, तो यू विल फाइंड दैट द फ्लूइड इज कन्वर्जिंग लाइक दिस. द स्ट्रीम लाइन ऑफ द फ्लूइड आर कन्वर्जिंग लाइक दिस. इट मीन्स दैट द एरिया ऑफ दिस इज रिड्यूसिंग ग्रेजुअली. इसका जो एरिया होगा फ्लूइड का, जेट का जो एरिया है वो क्या है,
gradually reduce करेगा. So cross section area that goes on decreasing like this. तो क्या होगा, वेलोसिटी इसका इंक्रीज होता जाएगा. वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा. वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया, जहां पे मिनिमम एरिया जेट का नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा सा फ्लूइड एट सम डिस्टेंस और कन्वर्ज होगा. उसके बाद फिर ये डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा. सो मिनिमम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, जो जेट का मिनिमम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द बीना कंट्रैक्टा. दिस इज कॉल्ड द बीना कंट्रैक्टा. बीना कंट्रैक्टा इज दैट सेक्शन, यू कैन से that where the area of the jet is minimum. You understand? Where the cross sectional area of the jet is minimum, that section is called the vena contracta. You understand this? अब बीना कंट्रैक्टा की कंडीशंस की बात करते हैं हम, क्योंकि हम जो जहां पे फाइंड आउट करते थे, करना है हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर डिफरेंस. क्योंकि हमारा जो ओरिफाइस मीटर है, इसका जो हमें कैलकुलेट करना है, अगर डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है कि प्रेशर डिफरेंस दो सेक्शंस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है. और प्रेशर डिफरेंस से हमें, जब प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे, वहां से हमें वी विल फाइंड द हेड एंड देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप. यू अंडरस्टैंड? हमारा जो मेन फंक्शन था, तो प्रेशर डिफरेंस आपको पता चल गया. हाउ वी हैव क्रिएटेड द प्रेशर डिफरेंस. पाइप के बीच में प्रेशर जो है हाई होगा, और जब हम ओरिफाइस मीटर लगाएंगे, बाकी तो ये दोनों एंड इसके ब्लाइंड है, सिर्फ इसके बीच में ये होल है जिसके थ्रू लिक्विड पास करेगा. तो क्या होगा, ये लिक्विड जो सारे का सारा लिक्विड है, ये कहां से पास होगा, ओरिफाइस से पास होगा, जो होल है. तो एरिया क्या होता जाएगा, इसका एरिया, फ्लूइड स्ट्रीमलाइंस जो है, इनका एरिया क्या होता जाएगा, कन्वर्स होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा. जैसे जैसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एरिया इसका कन्वर्स होता जाएगा, वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा, हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर मैं सेक्शन 1-1 लूं, तो इसके ऊपर हमारा प्रेशर डिफरेंट होगा. और अगर मैं सेक्शन 1-1-2-2 लेता हूं, जहां पे आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 2-2 कौन सा सेक्शन है, जो आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट है, वहां पे मैं दूसरी सेक्शन लूंगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा. जहां पे हाई प्रेशर होगा, जहां पे मिनिमम से मिनिमम प्रेशर होगा, बिल्कुल मिनिमम प्रेशर होगा, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा, इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और फिर हम इसका डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? वर्किंग आपको क्लियर हो गया. व्हाट इज द वर्किंग? वर्किंग इसका, इसको इस तरीके से लगाने का क्या फंक्शन है, क्या फन है, वी हैव टू रिड्यूस द पैसेज ऑफ फ्लो. यू अंडरस्टैंड दिस? हमें क्या करना है, इसका पैसेज ऑफ फ्लो रिड्यूस करना है. तो जो सर्कुलर प्लेट जो है, वो उसका ऑलमोस्ट डायामीटर जो है पाइप के बराबर है, और उसके बीच में जो होल है, उसका डायामीटर जो है वो क्या है, पाइप के डायामीटर से हाफ है. तो ये जो बाकी ये जो ब्लाइंड एंड है, जहां से जब भी लिक्विड जाएगा, वो सारा इसी पॉइंट से ओरिफाइस से पास करेगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ पाइप से बहुत ज्यादा स्मॉल होगा. यू अंडरस्टैंड? और उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा. तो प्रेशर डिफरेंस को हम अगर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर करते हैं, तो वी विल फाइंड द डिस्चार्ज by using the orifice meter. You understand this? So this is the working. अब इसके हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर, डेरिवेशन पार्ट के ऊपर आते हैं. So you understand this? अब कैलकुलेशन करने से पहले मैं at vena contracta. So vena contracta, you understand what is the media? What is vena contracta? The fluid is flowing through the pipe. Again, you understand, the fluid is flowing through the pipe, and we have installed the orifice meter here. The hole of the orifice, or the diameter of the orifice, that is very, very small as compared to the diameter of the pipe. The fluid streamlines are passing from the here, and it will start converging, and it will again start converging. And due to inertia, what happens? It will still converging at some distance, and then it will start diverging.
सो यू कैन से जो जेट, जो आपका फ्लूइड का जेट होगा, इसका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कहाँ पे होगा? दैट इज नॉट एट द ओरिफाइस बट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिफाइस. यू अंडरस्टैंड? सो दिस पॉइंट वेयर द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑफ द जेट, जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बीना कॉन्ट्रैक्टर. तो बीना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या होगा? पहला पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम. फर्स्ट पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम. सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, वेलोसिटी जो आपकी होगी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मैक्सिमम. थर्ड आपका पॉइंट होगा प्रेशर एट बीना कॉन्ट्रैक्टर इज मिनिमम. तो प्रेशर आपका क्या होगा? प्रेशर इज मिनिमम. फोर्थ, जो कैविटाइजेशन होगी जहां पे, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी. सो कैविटेशन इज मैक्सिमम. और फिफ्थ मैं कह सकता हूं कि जो स्ट्रीम लाइंस होंगी जब जहां पे पहुंचेगी बीना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो स्ट्रीम लाइंस आपकी क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी. स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लूइड, स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लूइड आर स्ट्रेट. यू अंडरस्टैंड? तो ये बीना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमें कंडीशंस मिलेंगी. दीज आर द कंडीशंस. क्या होगा कि प्रेशर जहां पे मिनिमम है, जहां पे मैक्सिमम है. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा हो गया कि बीना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमारे पैरामीटर्स किस तरीके से होंगे. यू अंडरस्टैंड? अब इसकी हम डेरिवेशन पार्ट के ऊपर आते हैं. वी विल जस्ट फाइंड द डेरिवेशन. देखिए, डेरिवेशन इसकी करते हैं हम, ये चार्ज की डेरिवेशन. So here we will take two sections here. One section I have taken here on the pipe where the pressure is maximum, and the second section, section 2 I have taken on the Bina contractor where the pressure is minimum, because our main aim is to find the pressure difference, right? Because the orifice meter का जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? that works on this principle that between the two sections there is the pressure difference, and by measuring the pressure difference we will measure the discharge of the liquid which is flowing through the pipe. You understand? तो consider two section पहले हम कर लेते हैं. section at section 1 at section 1 एक सेक्शन लेंगे हम जहां पे पाइप के ऊपर एक सेक्शन ले लेंगे. तो मैं कहता हूं लेट P1 B1 एंड लेट P1 आप लिख लो अब प्रेशर एट section 1 B1 velocity of the fluid at section 1 and A1 आपका आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
at the section 1-1. You understand? इसी तरीके से सेकंड सेक्शन लूंगा मैं जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा एट द बीना कॉन्ट्रैक्टर, राइट? क्योंकि हमें ओरिफाइस जो प्लेट लगाया, हमने ओरिफाइस जो मीटर लगाया था, इसका फंक्शन क्या था कि ओरिफाइस मीटर के अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, अपस्ट्रीम की बात करूं, तो जहां पे आपका क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा, प्रेशर हायर होगा, मैक्सिमम होगा। रीजन इज कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लूइड, जिसके बीच में से फ्लूइड पास कर रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम। और जब जो सेक्शन 2-2 की मैं बात करूं, तो जहां पे आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका फ्लूइड जेट का जो होगा दैट इज द मिनिमम, तो जहां पे प्रेशर आपका क्या होगा, जहां पे प्रेशर आपका क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, मिनिमम होगा, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम, तो प्रेशर इज मिनिमम हियर। तो इसी तरीके से एट सेक्शन 2-2 की बात करूं तो मैं लिख लेता हूं क्या, एट सेक्शन 2-2, एट सेक्शन 2-2 P2, B2 एंड A2 ले लेते हैं सीधा ही, आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ P2, B2 एंड A2 आर द corresponding values of pressure, velocity and cross sectional area. You understand this? तो ये दो मैंने सेक्शन ले लिया ताकि हम इसका प्रेशर डिफरेंस हेड हम इसका निकाल सके। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो यूज द बर्नौलीज इक्वेशन हियर, यूज बर्नौलीज, या अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन at section 1-1 and 2-2। सेक्शन 1-1 और 2-2 के ऊपर हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन हमारा क्या स्टेटमेंट है, क्या कहता है कि P1 प्रेशर हेड प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, this is equal to P2 square, sorry, P2 upon rho G plus V2 square upon 2G plus Z2। तो लॉसेज हम जहां पे नेग्लेजिबल लेंगे, जीरो लेंगे। रीजन इज, जहां पे आप अजम्पशन एक लिख लीजिए कि अजम्पशन में जहां पे लूंगा कि जो हमारा फ्लूइड, हम जहां पे पाइप के बीच में जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, the fluid is incompressible inviscid and steady। जो फ्लो हमारा है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनविसिड एंड स्टडी फ्लो का स्टडी फ्लो। सो यू कैन से दीज आर द कंडीशंस ऑफ द आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड हम यहां पे यूज कर रहे हैं। सो यू कैन से लॉसेज आई एम अज्यूमिंग हियर नेग्लेजिबल, जहां पे लॉसेज मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, नेग्लेजिबल। तो जहां से आप कर लीजिए P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, ब्रैकेट में रख लो इसको भी, इसको मैं इधर ले आया, राइट। दिस इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन
2g minus this is not b1 b2 square, इसको b1 square 2g को उधर लाएंगे हम. So this is equal to v2 square upon 2g minus v1 square upon 2, right? जहां तक क्लियर आपको? दिस इज क्लियर. तो इसको ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं हम. So P1 upon rho g plus Z1. This is your physiometric head. What is this? This is the physiometric head. So you can say this is equal to, अगर मैं HP1 minus HP2, this is equal to V2 square upon 2G minus V1 square upon 2G. तो physiometric head है ये. अगर मैं इसको डिनोट करता हूं h के साथ, therefore h this is equal to v2 square minus v1 square upon 2g or v2 square minus v1 square, this is equal to 2gh, right? Therefore v2 square क्या आएगा? v1 square को उधर ले जाइए आप, 2gh plus v1 square, right? So v2, the value of v2 is therefore v2, this is equal to root of 2gh plus v1 square. तो ये आपकी v2 की वैल्यू आ गई. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आएगा. जो आपका A1 का एरिया है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द डायमीटर ऑफ द पाइप. जो आपका A0 का एरिया है, A0 कौन सा एरिया है? दैट इज द एरिया ऑफ द ओरिफाइस. दैट यू कैन आल्सो कैलकुलेट बिकॉज यू आर हैविंग द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस. इफ इट इज नॉट गिवन, और अगर आपको पाइप का डायमीटर दिया है तो ओरिफाइस का डायमीटर यूजली हम लेते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप. तो आपको A0 और A1 एरिया दैट यू कैन कैलकुलेट. बट द प्रॉब्लम इज we are not knowing the area of A2 because A2 कौन सा एरिया है? A2 is the minimum cross sectional area of the jet. तो ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट है, ये तो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है नहीं, दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट. तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं, अगर मुझे A2 इसको निकालना है तो अगर मैं लेता हूं कि एट सेक्शन 2 की बात करता हूं, एट सेक्शन 2. सो देखिए एट सेक्शन 2 एरिया आपका क्या है? A2 है. और जो आपका ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया A0. अगर मैं देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन मैं निकालूं जहां से, क्योंकि जहां से ये कंट्रैक्ट हो रहा है और जहां से ये इसका मैक्सिमम कंट्रैक्शन होगी, उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया फिर ये कंट्रैक्ट होगा और ये आपको जहां पे मिलेगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया. तो अगर मैं therefore कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC. CC इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन. और जे मैं ले सकता हूं आपका यस A2 upon A0, right? So coefficient of contraction, this is equal to
राइट। देयरफॉर A2 जहां से आपको मिल जाएगा, CC कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू आपको दिया होगा न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज आई विल टेल यू कि कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर, इसका रेंज वैल्यू क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। सो CC इंटू A0, तो A0 की तो वैल्यू आपके पास है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस। तो अगर ओरिफाइस का डायमीटर आपको मालूम है तो A0 यू कैन कैलकुलेट, एंड बाय मल्टीप्लाइंग दिस with the coefficient of contraction you will find the value of A2. you understand? A2 की वैल्यू आपको जहां पे फाइंड आउट हो गई, तो जे भी आप इसको CC की A2 की वैल्यू CC इंटू A0 आप रखिए इसको, राइट। सो आगे देखिए, राइट, इसको लिख लीजिए। अब उसके ऊपर क्या कीजिए, CC की वैल्यू आपने नोट कर लिया, A2 अपॉन A0 कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू दिस वन। इसको मिटा देते हैं हम। आप इसके बाद क्या कीजिए, आप इसको लिख लेते हैं पहले। B2 की वैल्यू तो कर लीजिए, 2GH प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट, राइट। ये मैंने मिटा दिया था, सो आई हैव रिटन हियर B2 द वेलोसिटी एट द वीना कंट्रैक्टर, दिस इज दिस मच। अब देखिए, अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन at section 1 and 2। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप सेक्शन 1 और 2 के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा आपका, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, यू अंडरस्टैंड। तो A2 की क्या वैल्यू थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज इक्वल टू CC इंटू A0, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, राइट। हमें जहां से क्या फाइंड आउट करना है, हमें B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B1, क्योंकि हमें B1 की वैल्यू जहां पे दिया है, तो हमारा कोशिश है कि इस इक्वेशन को हम B2 में ही कन्वर्ट करें। तो B1 आपका होगा मीन्स A2 इंटू B2 अपॉन A1, राइट। तो A2 की वैल्यू क्या है, देयरफॉर B1 दिस इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू है CC इंटू A0, इसकी जगह ये पुट कर ले, CC इंटू A0 इंटू B2 अपॉन A1, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी B1 की वैल्यू आ गई, यू अंडरस्टैंड दिस। अब B1 की ये जो वैल्यू है, यू सब्स्टिट्यूट हियर, राइट। इसकी वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, B1 की वैल्यू। तो इसको मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं पहले, तो ये आपका आ जाएगा B2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2GH प्लस B1 स्क्वायर, और B1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, देयरफॉर B2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2GH प्लस, what is your B1? This is B1 CC का स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर इंटू A0 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, राइट। यस, CC स्क्वायर B2 स्क्वायर A0 स्क्वायर, दिस B1 की जगह मैंने ये पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूं, देयरफॉर B2 स्क्वायर माइनस, इसको आप इधर ले जाइए सभी को, तो ये आपका आ गया CC स्क्वायर B2 स्क्वायर इंटू A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2GH,
B2 का कॉमन ले लें यहां से, B2 स्क्वायर, therefore B2 स्क्वायर कॉमन, this is equal to 1 minus C स्क्वायर B2 square common, this is 1 minus CC square into A naught upon A1 square into 2GH, right? Into 2GH. So therefore इसको बता लीजिए आप, इसको रख लेते हैं, बाकी मिटा लें। Therefore B2 square, this is equal to 2GH divided by 1 minus CC square into A naught square upon A1 square, right? और अगर मैं yes, therefore B2 क्या आएगा, अब कर लीजिए, अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस CC स्क्वायर इंटू A नॉट स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर. So this is the value of B2. This is the value of B2. तो ये आपकी B2 की वैल्यू आ गई। B2 की क्या वैल्यू आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ B2. सो B2 दिस इज इक्वल टू दिस वन, राइट? तो आपने B2 की वैल्यू निकाली है, मींस वेलोसिटी एट द वीना कंट्रैक्टर एट द सेक्शन 2-2। तो अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, क्या होगा? ये आपका डिस्चार्ज आर द रेट ऑफ फ्लो। सो दिस इज इक्वल टू A2 इंटू V2, राइट? जो डिस्चार्ज आपका जहां पे होगा वही डिस्चार्ज आपका जहां पे होगा, A2 इंटू B2। बट A2 क्या था हमारा? व्हाट इज A2? A2 था हमारा, बट A2 जो अभी मैंने निकाला, आपको पता है ये आपका A2 अपॉन A नॉट, दिस इज इक्वल टू CC, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। देयरफॉर A2 दिस इज इक्वल टू CC इंटू A नॉट। तो A2 की जगह मैं CC इंटू A नॉट लिख सकता हूं, राइट? देयरफॉर डिस्चार्ज क्या हो, दिस इज इक्वल टू A2। A2 क्या आ गया? CC इंटू A नॉट, राइट? एंड व्हाट इज योर B2? B2 इज गिवन दिस, दैट इज 2GH रूट ऑफ 1 minus CC square into A naught square upon A1 square, right? So this is the discharge. This is the value of the discharge. क्यों किसके बराबर आ गया? इसके बराबर Q is equal to CC into A naught into 2GH divided by 1 minus CC square into A naught A1 square. This is the value of discharge when I am using this coefficient of contraction here. But if I have to use the value of coefficient of discharge, अगर, क्योंकि ये क्या है, coefficient of contraction की वैल्यू है,
तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की अगर वैल्यू हमने यूज करनी है तो इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करके इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले आप लिखिए इसकी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू, तो इसको मिटा देते हैं हम। सो सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं, यस, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, दिस इज इक्वल टू सी सी रूट ऑफ 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन होल स्क्वायर over 1 minus a naught a one whole square into cc square। इसको पूरा आप ले लीजिए, 1 minus a naught upon a one whole square into cc square, right? This is the coefficient of discharge, that is cc, right? And therefore c, जहां पे therefore cc की क्या वैल्यू आएगी, cc की क्या वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cc? तो cc की वैल्यू आपकी आएगी cd इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन होल स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 minus a naught a one whole square in whole square, right? So this is the value of cc. cc की क्या वैल्यू आएगी? Yes, this, right? So this is the value of cc. तो cc की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें, जो आपका रिलेशन आया था, व्हाट इज द रिलेशन देयर? तो रिलेशन आप क्या था इसका, तो रिलेशन था आपका Q इज इक्वल टू सी सी इंटू ए नॉट इंटू रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए नॉट ए वन होल स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर, 1 माइनस ए नॉट upon a1 whole square into c square, right? So this is the value. तो जब cc की ये वैल्यू, जहां पे ये जो cc की वैल्यू है, ये जहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर लें इस रिलेशन में, तो क्या आएगा आपका, जहां से लिख लेते हैं हम, देखो Q इज इक्वल टू cc की जगह क्या होगा, cd इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन होल स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन होल स्क्वायर, राइट? सी सी की जगह क्या आ गया, इंटू ए नॉट into this one, क्या था ये, रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन होल स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर, राइट? तो J वैल्यू
दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। और अब आपका रिलेशन किस में आ गया, तो इसको आप मिटा दीजिए। So your relation now is, therefore Q is CD into A naught into root of 2GH। तो इसमें A1 स्क्वायर क्या होगा, इसका कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लें इसका, तो ये बन जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A नॉट स्क्वायर। और ये जो आपका A1 स्क्वायर है ये क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज दिस A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जहां पे जब A1, राइट। सो दिस इज द रिलेशन। क्या रिलेशन होगा, Q इज इक्वल टू CD, यस, Q इज इक्वल टू CD इंटू A नॉट इंटू A1 इंटू रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A। सो ये आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है तो यू कैन आल्सो यूज दिस फार्मूला, और जो आपका पहले था कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन में, तो ये भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ यू कैन यूज द फार्मूला, ओनली दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फार्मूला बाय यूजिंग दिस रिलेशन, यू अंडरस्टैंड दिस। तो Q डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू CD इंटू A नॉट इंटू A1 रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A नॉट स्क्वायर। राइट, दिस इज क्लियर। तो इसको मिटा देते हैं। ये आपका आ गया डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय यूजिंग द ऑरिफाइस मीटर, डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड और द लिक्विड वाटर इन द पाइप बाय यूजिंग द दिस वन orifice meter where H is the pressure head and rest of the A naught, this is the area of the orifice, A1 this is the area of you can say pipe, and rest everything is there. H, the value of H is given. Now we will discuss about the coefficient of discharge here, right? So coefficient of discharge in case of orifice meter। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज that is CD in case of orifice meter, राइट। जनरली जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं, जनरली जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं, जनरली the value of CD in case of orifice meter CD की जो वैल्यू लेंगे कोफिशिएंट दैट इज 0.652 that is 0.6 to 0.65, you understand this? So coefficient of discharge in case of orifice meter generally we take this value। अगर मैं डेंसिटीमीटर की बात करूं तो ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ओरिफाइस में, ये हम लेते हैं CD, दिस इज इक्वल टू CC इंटू CV, ये हमने पहले पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, this is equal to the coefficient of contraction into the coefficient of velocity, you understand?
बट इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर की बात करता मैं, सो बट इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर के केस में क्या है, क्योंकि जहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। सो सीसी जो आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। सो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस केस में जो आपका होगा, सो CD जो इस केस में होगा, दिस इज इक्वल टू CV इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। ये याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर दिस इज ऑलमोस्ट 1, so we usually take the value of CD is equal to CV। बट अगर हम बात करें ओरिफाइस मीटर की, बट इन केस ऑफ ओरिफाइस, बट इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ओरिफाइस के केस में क्या होगा, जो वैल्यू मैंने आपको बताया कि इसकी जनरली वैल्यू जो है CD क्या है, CC इंटू CV। बट इन केस ऑफ ओरिफाइस क्या है, जहां पे बिना कंट्रैक्टा फॉर्मेशन हो रहा है, एरिया जहां पे क्या है मिनिमम हो रहा है, बिना कंट्रैक्टा की फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होगा, सो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होगा CC, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 बट दिस इज लेस देन 1, राइट। तो CC की जो वैल्यू होगी, बिकॉज हेयर द क्या है, बिना कंट्रैक्टा देयर इज द कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होगा, जो हमने फाइंड भी किया था, दिस इज इक्वल टू A2 अपॉन A0। तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होगा वो 1 से क्या होगा, 1 लेस होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इन दिस केस दिस इज इक्वल टू लेस देन 1, और जो CV की वैल्यू है दिस इज आल्सो इक्वल टू लेस देन 1। CV की जो वैल्यू है दिस इज आल्सो इक्वल टू लेस देन 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर दिस इज आल्सो लेस देन 1। व्हेन two terms less than 1, if they are multiplied together, so their value will become more less than 1, you can say। इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा less than 1 हो जाएगी, क्योंकि CC की भी आपका less than 1 है इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर, और CV की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो लेस देन 1 इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर। तो जो आपकी CC की जो वैल्यू होगी इस केस में, सॉरी CD की जो वैल्यू होगी, CD की जो वैल्यू होगी ये लेस देन 1 होगी, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपकी CD की वैल्यू वेंचुरीमीटर के केस में, जो वेंचुरीमीटर है उस केस में मैं CD की वैल्यू लेता हूं उसको 0.95 टू 0.99 लाइक दिस 9, यस, तो उसको बता दीजिए। So in case of वेंचुरीमीटर, CD की जो वैल्यू हम लेते हैं ये जनरली 0.95 टू 0.99 लेते हैं, एंड इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर, जो ओरिफाइस मीटर की जो वैल्यू होगी, इन केस ऑफ ओरिफाइस मीटर की वैल्यू वो क्या होगा, वेंचुरीमीटर की वैल्यू से कम होगी, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर दैट इज 1, but in case of orifice meter coefficient of contraction is less than 1. CV is also less than 1 when two terms of less than 1 multiply together, so its value will again become more less than 1. तो इसकी जो इनके जो वैल्यू है orifice CD की जो हम वैल्यू लेते हैं that is 0.60 to 0.65, right? So this is in case of orifice meter, the value of CD that is less than the value of the Venturi-meter in case of orifice meter. You understand this? So this is all about your this lecture orifice meter. इसमें हमने आज फाइंड आउट किया कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका डेरिवेशंस, कैलकुलेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज,
which is flowing through the pipe by installing the orifice meter here. और उसका फार्मूला भी have derived, and then जो इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसके बारे में हमने स्टडी किया कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका कितना है. कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो है इसका लेस देन 1 होता है, जबकि इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन 1 है. तो इस केस में ये जो CD की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट किया, तो CD की वैल्यू हम यूजुअली जो लेते हैं दैट इज 0.60 to 0.65, बट इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर द वैल्यू ऑफ CD दैट वी टेक 0.95 to 0.99. So this is all. Thank you very much. Tomorrow next lecture I will take. So thank you.